Namaskar, myself Rajesh Varevale. I welcome all of you to your YouTube channel Biology Evle Sir Online Classes. In previous video lecture we have discussed cell wall, and in this video lecture we have to discuss plasma membrane. This plasma membrane is also called as cell membrane. It is also called as biomembrane. There are various names are given to this plasma membrane. तो देखो, जब हम लोगों ने सेल थियरी पढ़ी थी, यू नो दैट सेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय टू साइंटिस्ट. डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द टू साइंटिस्ट? द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज किडेन एंड सेकंड इज द स्वैन. In that video lecture, we have studied that Swan discovered that animal cell is surrounded by a thin membrane. He didn't provide the name for that structure. The name for that structure, thin covering which surround the cell, was given by two scientists. The first scientist, Nageli, and second scientist Kramer in 1855. It means that the term plasma membrane was discovered by Swan, but the term plasma membrane was coined. Coined का मतलब होता है use for the first time. The term plasma membrane was coined by these two scientists, Nageli and Kramer, in 1855. This plasma membrane is thin. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कैसा स्ट्रक्चर है, हम लोगों को स्टडी करना है. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन, क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट extracellularly and intracellularly. तो देखो, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह का स्ट्रक्चर है? इट इज थिन. देन देयर इज अ वर्ड क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, और कहां पे प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट है और इंट्रा सेलुलरली भी प्रेजेंट है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज थ्री वर्ड्स? द फर्स्ट इज क्वासी फ्लूइड, सेकंड इज एक्स्ट्रा सेलुलरली, एंड थर्ड इज द इंट्रा सेलुलरली. द फर्स्ट वर्ड we will discuss extracellularly. Suppose that this is a cell, and you know that cell is surrounded by this thin membrane, and this thin membrane is the plasma membrane. अब इस सेल को अगर आपने कंसीडर किया तो ये सेल को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कहां पे प्रेजेंट है? एक्सटर्नल साइड से प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई इट इज एक्स्ट्रा सेलुलरली. जब हमको यूकैरियोटिक सेल अगर पढ़ना है, दिस इज द यूकैरियोटिक सेल. You know that this eukaryotic cell has different types of cell organelles, and these cell organelles are surrounded by the membrane, and this membrane which surrounds the cell organelles is also plasma membrane. It means that in this condition the plasma membrane present inside the cell, and that's why it is called as intracellularly. Got it? What is the meaning of extracellularly? It is present around the cell. Intracellularly means it is present around the cell organelles, and there is one word, that is the quasi fluid. Now what is the meaning of quasi fluid? This plasma membrane shows properties like ability to fuse. Next is the quick repair. Next is show the property of
contraction and relaxation. Next, it show the property of growth. Next, it may form intracellular junctions. It also show the property of secretion, and these properties are shown by plasma membrane, and that's why it is called as quasi-fluid. Got it? The quasi-fluid nature of plasma membrane shows the properties like ability to fuse, quick repair, property of contraction and relaxation, growth, intracellular junction or formation of intracellular junction, secretion, etc. Got it? Next point regarding plasma membrane is that if you consider the thickness of a plasma membrane, it is 75 angstrom unit. The thickness of plasma membrane is 75 angstrom unit. Next statement is a very important statement. Plasma membrane is selectively permeable for solutes but semi-permeable for solvent. Remember this statement. The plasma membrane is selectively permeable for solutes but semi-permeable for solvent. Now, one question may arise, what is the meaning of selectively permeable and semi-permeable? We will discuss all these parts in coming videos. आपको इतना ही ये वीडियो के बारे में ख्याल में रखना है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कैसा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल फॉर सोलिड. सोलिड के लिए कैसा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सिलेक्टिवली परमिएबल है. लेकिन सॉल्वेंट के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज सेमी परमिएबल. गॉट इट? Next point regarding plasma membrane is that in electron microscope, under electron microscope, this plasma membrane appears as a 3-layered structure, and that's why it is called as trilaminar. Remember this word, trilaminar. What is the meaning of trilaminar? Under electron microscope, this plasma membrane appears as a 3-layered structure, and that's why it is called as trilaminar. जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कैसा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ट्राइलैमिनर है. इसका मतलब यह है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कितने लेयर्स प्रेजेंट है? 3 लेयर्स प्रेजेंट है. अब देखो, मैं यहां पे छोटी सी एक डायग्राम निकालता हूं ताकि आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आए. इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा. हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 3 लेयर्स. दिस इज द साइटोप्लाज्म. ये देखो सेल का है ना, ये अंदर का जो पार्ट है, यहां पे क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म. दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये पार्ट कौन सा है? साइटोप्लाज्म का पार्ट है. ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला, दिस इज आउटर डार्क लेयर. दिस इज इनर डार्क लेयर. और ये जो बीच का है, इट इज मिडल ट्रांसपेरेंट लेयर. In this way, plasma membrane has 3 layers: outer dark layer,
this middle transparent layer and inner dark layer, and that's why it is called trilaminar. Got it? These are introductory points regarding the plasma membrane. The first point, the term plasma membrane was coined by Nageli and Kramer in 1855. Plasma membrane is thin, squashy fluid structure present both extracellularly as well as intracellularly. Extracellularly means it is present around the cell, and what is the meaning of intracellularly? It is present around the cell organelles. And this plasma membrane is calcified structure, and it shows some properties like ability to fuse, quick repair, contraction relaxation, growth, formation of intracellular junction, secretion, etc. Next point we have discussed is that the thickness of plasma membrane is 75 Armstrong unit. The very important point we have discussed, plasma membrane is selectively permeable for solute but semi-permeable for solvent. Next point, under electron microscope, this plasma membrane appears as a three-layered structure and it is called as trilaminar. The outer dark layer, middle transparent layer, and inner dark layer. Got it? Now we have to discuss the composition of plasma membrane. As far as the composition of plasma membrane is concerned, it consists of three components. The first component is the lipid. Second component of plasma membrane is the proteins, and third component is the carbohydrates. It means that plasma membrane consists of lipids, proteins, and carbohydrates. The lipids which are present in plasma membrane are in the form of phospholipids or phosphoglycerides. जो भी लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, those lipids are phospholipids और phosphoglycerides. Now what is the meaning of phospholipid? अगर लिपिड के साथ फॉस्फेट अटैच है, फॉस्फोरस अटैच है, तो दैट लिपिड इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड. लिपिड के साथ क्या अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एसोसिएट है, तो वो जो लिपिड है दैट लिपिड इज दी फॉस्फोलिपिड. उसमें क्या प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? और प्रोटीन्स आर देयर. उसके बाद उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, एंड द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेनली ओलिगोसैकेराइड्स. जिस टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, मेनली कौन से टाइप के प्रेजेंट है? ओलिगोसैकेराइड्स. इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस कार्बोहाइड्रेट इन डिटेल. At that time we will study oligosaccharides. You know that carbohydrates are classified mainly into three types: monosaccharide, oligosaccharides and polysaccharides. तो ये oligosaccharides क्या होते हैं, उनके क्या टाइप्स है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब उसको हम पढ़ेंगे. ओके, तो ये चीज ख्याल में रखो. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितने कंपोनेंट्स? थ्री कंपोनेंट्स. कौन कौन से थ्री कंपोनेंट्स है? लिपिड्स है, प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है. अब जो लिपिड प्रेजेंट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड. अभी मैंने आपको बताया कि फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है. अगर लिपिड के साथ क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, दोज लिपिड्स आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स. अब जो फॉस्फोलिपिड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, वो फॉस्फोलिपिड किस तरह से है? अभी मैंने आपको बताया जो लिपिड प्रेजेंट है कौन से फॉर्म में?
फॉस्फोलिपिड्स। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये फॉस्फोलिपिड्स हैज, each molecule of phospholipid has two parts. The first part is called head and second part is called tail. अब देखो मैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड निकाल रहा हूं, ये इस तरह का फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द हेड एंड दिस पार्ट इज द टेल। गॉट इट? जो लिपिड प्रेजेंट है दैट इज दी फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में कितने पार्ट्स? टू पार्ट्स। कौन से टू पार्ट है? एक हेड है और एक पार्ट कौन सा है? टेल है। अब ये जो हेड है ना, दिस हेड इज अ पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, while this tail is non-polar and hydrophobic. There are two words, polar and non-polar. Next, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। पोलर मीन्स क्या होता है? जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है दैट इज द पोलर, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है दैट इज द नॉन पोलर। इतना याद रखो। अब देखो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जब भी बायोलॉजी में यह वर्ड आएगा, कौन सा? हाइड्रो। हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। जब भी बायोलॉजी में कौन सा वर्ड आएगा? हाइड्रो। जहां जहां भी वर्ड आएगा उसका मीनिंग क्या हो गया? वाटर। और ये जो फिलिक, फिलिक का मतलब होता है लविंग। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। इट मीन्स दैट द सब्सटेंस which is water loving, that is the hydrophilic. Okay, then another word is hydrophobic. Hydro means water and phobic means repelling, जो water को repel करता है, that is the hydrophobic. Got it? Philic का मतलब क्या? Loving. and phobic का मतलब क्या होता है? repelling. ये जो head है फॉस्फोलिपिड का, दिस हेड इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल है दिस टेल इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। देखो एक सिंगल लिपिड मॉलिक्यूल में, एक सिंगल फॉस्फोलिपिड में दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। उसमें क्या प्रेजेंट है? एक जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, दूसरा पार्ट कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। दोनों प्रॉपर्टी एक ही मॉलिक्यूल बताता है। That's why it is called as, this nature of this phospholipid molecule is called amphipathic. कौन सा नेचर है? एम्फीफैटिक नेचर इसको कहते हैं। और एक चीज याद में रखना, जैसे आपने हाइड्रो का मीनिंग क्या रिमेंबर किया? वाटर। फिलिक का मतलब क्या रिमेंबर किया? लविंग। फोबिक का मतलब क्या रिमेंबर किया? रिपेलिंग। इन द सेम वे ये जब भी वर्ड आएगा, कौन सा? एम्फी। एम्फी मीन्स बोथ। आपने सुना होगा एम्फीबियंस, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, दोज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। एम्फी मीन्स बोथ। कहां पे पाए जाते हैं? वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड पर भी पाए जाते हैं, दोनों जगह प्रेजेंट रहते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ। ये जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड में दोनों भी प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोफिलिक भी पार्ट प्रेजेंट है और हाइड्रोफोबिक भी पार्ट प्रेजेंट है। इसमें पोलर पार्ट भी प्रेजेंट है, नॉन पोलर पार्ट भी प्रेजेंट है। गॉट इट? वन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट the proportion of lipids and proteins present in plasma membrane vary in different types of cell. अगर आपने different types की सेल ली, फॉर एग्जाम्पल आपने एक आधी ब्लड की सेल ली, ब्लड में भी 3 टाइप्स की सेल पाई जाती है, आरबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है और प्लेटलेट्स प्रेजेंट है।
ये तीनों टाइप की सेल ली, आपने लीवर की सेल ली, आपने मसल सेल ली, हर एक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो भी प्रोटीन एंड लिपिड का प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शन डिफरेंट रहेगा, सेल टू सेल, डिफरेंट टाइप्स के सेल टू सेल वैरी करते जाएगा। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है, एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन, अगर आपने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल लिया और ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोगों ने कंसीडर किया, दिस हीमोग्लोबिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 52% ऑफ प्रोटीन्स एंड 40% ऑफ लिपिड्स। ये वैल्यू रिमेंबर करना है। हीमोग्लोबिन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स 52% ऑफ प्रोटीन्स एंड 40% ऑफ लिपिड्स। और ये जो प्रपोर्शन है लिपिड और प्रोटीन्स का सेल बॉडी के डिफरेंट सेल में डिफरेंट रहेगा। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां तक समझ में आ गया? तो देखो कितने कंपोनेंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स है? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लास्ट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? मेनली इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड और फॉस्फोग्लिसराइड्स। सेकेंड इज द प्रोटीन, और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है मेनली इन द फॉर्म ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स। नेक्स्ट, जो भी लिपिड प्रेजेंट थे वो कौन से लिपिड थे? फॉस्फोलिपिड। एंड दिस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट्स, हेड एंड टेल। द हेड इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, एंड टेल इज नॉन पोलर and hydrophobic, means water repelling. It means that these phospholipid molecules shows the property of hydrophilic as well as hydrophobic, polar as well as non-polar, and this nature of the phospholipid molecule is called amphipathic. We have already discussed what is the meaning of amphi. Amphi means both. Next point we have studied, in case of plasma membrane of different types of cells, the proportion of lipids and proteins vary considerably. For example, the plasma membrane of hemoglobin contains 52% of protein and 40% of lipids. Now we have to discuss the structure of plasma membrane. To explain the structure of plasma membrane, the most widely accepted model is fluid mosaic model, which is the most accepted model to explain the structure of plasma membrane. Fluid mosaic model. This fluid mosaic model was proposed by 2 scientists, Singer and Nicholson, in 1972. Which is the most widely accepted model to explain the structure of plasma membrane? Fluid mosaic model. This fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicholson in 1972. According to this fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson, plasma membrane consists of phospholipid bilayer. तो देखो ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर्स है? 2 लेयर्स है। अभी आप हम लोगों ने पढ़ा कि फॉस्फोलिपिड किस तरह से था, इस तरह से था।
ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज दी हेड एंड दिस इज दी टेल। हेड कैसा था, कैसा था, दिस हेड इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, और ये टेल कैसा था, टेल इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। तो देखो इसमें ये मॉडल, ये जो मॉडल है फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन का, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें क्या प्रेजेंट है, ये फॉस्फोलिपिड का एक लेयर नहीं, ऐसे कितने लेयर प्रेजेंट है, 2 लेयर्स आर देयर। अब देखो मैं यहां पे छोटे से एक डायग्राम निकालता हूं ताकि आपको समझ में आए। वन फॉस्फोलिपिड लेयर, दिस इज अनदर फॉस्फोलिपिड लेयर। तो किस तरह से ऑर्गेनाइज है देखिए, ये जो पार्ट है, अब इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते, सपोज दैट दिस इज अ सेल। अब ये सेल है, ये सेल का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको अपन थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली। अब देखो ये लेयर किस तरह से प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये यहां पर ऐसा ऐसा है, ये साइड से, ये साइड से ऐसा ऐसा है, और ये टेल इस तरह से। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इस तरह से ऑर्गेनाइज है, पूरे इसको सेल को सराउंड रहेगा। ओके, वन फॉस्फोलिपिड लेयर, दिस इज अनदर फॉस्फोलिपिड लेयर एंड दैट्स व्हाई इट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, दिस पार्ट इज द हेड एंड दिस पार्ट इज द टेल, हेड एंड टेल, इस तरह से प्रोजेक्शन उसका है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इसके साथ क्या एसोसिएट है, प्रोटीन्स एसोसिएट है। तो ये जो प्रोटीन्स एसोसिएट है, ये कौन कौन से प्रोटीन्स है, ये हम लोगों को देखना है। अब देखो इसके अंदर जो प्रोटीन्स एसोसिएट है, these proteins are mainly classified into 3 types. The protein molecules which are associated with phospholipid bilayers are mainly classified into 3 types. The first is extrinsic protein, or it is also called as peripheral protein. Second is intrinsic protein. These are called as integral protein. And the third is tunnel protein, or it is also called as transmembrane protein. How many types of proteins? You may say the proteins which are associated with phospholipid bilayer are classified into 3 types. The first type is extrinsic or peripheral protein, second is intrinsic or integral protein, and third is tunnel or transmembrane protein. This protein which is loosely attached to this phospholipid bilayer and can easily be removed from this phospholipid bilayer is called, this protein is the extrinsic protein, or it is also called as peripheral protein. There are some protein molecules which are embedded into this phospholipid bilayer and tightly bind to this phospholipid bilayer. ये जो प्रोटीन है, अब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है कैसा है, प्रोटीन मॉलिक्यूल टाइटली बाइंड है, और इसके अंदर क्या हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड हुआ है. दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन.
and also known as integral protein. There are certain protein molecules now this is the protein molecule. This protein molecule thoroughly embedded into phospholipid bilayer and can be visible from both sides. This type of protein is called tunnel protein. ये जो protein है, this protein is the tunnel protein. In this way, the proteins which are associated with phospholipid bilayer are of three types: extrinsic protein, intrinsic protein or integral protein. Extrinsic are called as peripheral protein, and these are the tunnel protein or transmembrane protein. Okay, the proteins which are associated with this phospholipid bilayer perform certain functions. For example, proteins provide structural and functional specificity to the plasma membrane. ये जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड, सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मे फंक्शन एज एंजाइम्स. कुछ जो प्रोटीन एसोसिएट है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, वो प्रोटीन एंजाइम जैसा भी काम कर सकते हैं. सम प्रोटीन्स आर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल. कुछ कुछ प्रोटीन्स ऐसे जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस टनल प्रोटीन. दिस टनल प्रोटीन प्रोवाइड्स द पैसेज फॉर द water and water soluble substances. And next function of proteins, some proteins form the receptors. कुछ कुछ जो प्रोटीन्स है वो क्या फॉर्म करते हैं? रिसेप्टर्स फॉर्म करते हैं. सम प्रोटीन्स फॉर्म द रिसेप्टर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर द हार्मोन्स, एंटीजन्स एक्सेट्रा. समझ में आया प्रोटीन्स? नेक्स्ट कंपोनेंट देखो कितने कंपोनेंट्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा था? फॉस्फोलिपिड. सेकंड कौन सा था? प्रोटीन. अब थर्ड कंपोनेंट कौन सा था? दैट इज द कार्बोहाइड्रेट. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेनली oligosaccharides. These oligosaccharides or carbohydrates which are associated with this plasma membrane provide negative charge on the outer side of the plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे, आउटर साइड मीन्स बाहर की साइड. ये सपोज दैट दिस इज द सेल. सेल का जो बाहर का साइड है ना, दिस इज द आउटर साइड. ये आउटर साइड में जो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, दिस निगेटिव चार्ज is due to the presence of oligosaccharide molecules. Okay, and these oligosaccharide molecules, carbohydrate molecules, provide the binding site for the antigens. Antigens के लिए अगर binding site provide करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, that function is provided by oligosaccharides. And the last point regarding the plasma membrane is that the function. As far as the functions of plasma membrane are considered, the main function performed by the plasma membrane is the transportation of substances. There are various functions performed by the plasma membranes. But what are the functions mentioned in our textbook? We will only discuss those functions. The most important function of a plasma membrane is the transportation of substances. इसका मतलब क्या होता है? जो भी substances सेल के बाहर है उसको अंदर लेके जाना, और जो कुछ substances अंदर प्रेजेंट है उनको बाहर लेके आना. This is the function performed by the plasma membrane. The transportation of substances through plasma membrane
is achieved by two mechanisms. The first mechanism is the passive transport and second is the active transport. Now, what is the meaning of passive transport and what is the meaning of active transport? Remember one thing, whenever the word passive is used in biology, it means that the process which does not require the use of metabolic energy, that process is called passive process. जिस प्रोसेस में मेटाबॉलिक एनर्जी यूटिलाइज होती नहीं है, वो जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज द पैसिव प्रोसेस. एंड व्हाट इज द एक्टिव प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक एनर्जी इज यूटिलाइज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्टिव प्रोसेस. अब आपको प्रॉब्लम आया होगा, व्हाट इज मेटाबॉलिक एनर्जी? वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट. Energy which is used by living organism or living organism cell is the ATP. जो भी प्रोसेस ATP यूटिलाइज करके होती है, दैट प्रोसेस इज एक्टिव प्रोसेस. एंड जो प्रोसेस विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, दैट इज ATP, दैट प्रोसेस इज द पैसिव प्रोसेस. इसका मतलब यह है, कुछ सब्सटेंसेस मेटाबॉलिक एनर्जी यूज विदाउट यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होते हैं, एटीपी यूज किए बिना ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट ट्रांसपोर्ट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे जिनको ट्रांसपोर्ट करना है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या लगेगा? मेटाबॉलिक एनर्जी यूज होगी. किस फॉर्म में यूज होगी? एटीपी के फॉर्म में होगी, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में फॉर एग्जांपल यहां पे सिंपल डिफ्यूजन से कुछ सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं. सिंपल डिफ्यूजन से, फॉर एग्जांपल न्यूट्रल सोल्यूट. जो भी न्यूट्रल सोल्यूट्स है, these neutral solutes are transported by simple diffusion. Now what is the meaning of diffusion? It is the migration of particles of solid, liquid or gases from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration, that is called as diffusion. diffusion का मतलब क्या होता है? जो भी पार्टिकल्स है जहां उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. कहां ट्रांसपोर्ट होते हैं? जहां पर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है. ये ट्रांसपोर्टेशन कब तक चलते रहेगा? जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होता है, तब तक. And that process is called as diffusion. And for diffusion, no energy, metabolic energy is utilized. ये जो simple diffusion से जो भी neutral solute membrane through, plasma membrane through transport होते हैं, that is the passive transport. Because for the transportation of neutral solute, there is no requirement of ATP, and that's why it is the passive transport. Second is the osmosis. What is osmosis? It is the migration of particles of solvent from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration through semi-permeable membrane, that is the osmosis. Osmosis is one of the type of diffusion. Diffusion और osmosis में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि diffusion में there is a migration of any particle, solid का भी होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, किसी का भी माइग्रेशन है, दैट इज द डिफ्यूजन. लेकिन ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होता है, लेकिन डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन था क्या? नहीं था, लेकिन यहां पर क्या है? मेम्ब्रेन है. सपोज दैट वन सॉल्यूशन यहां पे रखते हैं, अदर सॉल्यूशन यहां पे रखते हैं. अब देखो, ये सॉल्यूशन है और ये बी सॉल्यूशन है. ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर है, बी का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है. किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन कम है. दिस टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय
दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहां पर क्या होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां पे सॉल्वेंट कम है, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है। तो देखो सॉल्वेंट कहां ज्यादा है, ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? ए में ज्यादा है, क्योंकि एक सॉल्यूशन कैसा है, दोनों को कंपेयर किया तो डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होंगे फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज द ऑस्मोसिस। जो भी ऑस्मोसिस होता है, इट मींस दैट थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन water which is transported, or water soluble substances, for example water soluble gases like O2 and CO2, which are transported through plasma membrane are by osmosis, and that is the passive transport. And last is the active transport. In active transport there is utilization of metabolic energy. For example, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है, क्या है, पोलर है। पोलर का मतलब अभी मैंने समझाया था, पोलर मीन्स जिसके ऊपर चार्ज्ड है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो क्या लगेगा, एनर्जी का यूटिलाइजेशन लगेगा। दैट्स व्हाई इट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट पोलर के लिए। उसके बाद सोडियम एंड पोटेशियम पंप, ये जो है दैट इज द active transport. This is the information regarding the plasma membrane.